Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to complete the exercise part of chapter 8, Cells, Structures and Functions. I have given you some questions in your homework. I hope you have done it and also have no doubt in it. So let's start the further questions. Question number 2. Make a sketch of the human nerve cell. What function do nerve cells perform? तो ये क्वेश्चन में आपको एक स्केच बनाना है नर्व सेल का और नर्व सेल का क्या क्या फंक्शन है वो आपको लिखना है. So students, you can see the sketch of the nerve cell. You have to make it in your copy, and the parts were nucleus, cell body, axon, myelin sheath, Schwann scale, node of Ranvier, or you can say Ranvier node, axon, terminal, and the first of all is dendrite. Alright, so the function of the nervous cells is to receive and transfer messages. It helps to control and coordinate the working of different parts of the body. The fourth question is, which part of the cell contains organelles? So cytoplasm contains organelles. I hope you all know that. So various cell organelles are present in the cytoplasm. It is clear and colorless fluid that contains organelles like mitochondria, ribosomes, Golgi bodies, etc. Okay. Now the question number 5 is, here you have to make a sketch of animal and plant cells and state 3 differences between them. तो यहाँ पे आपका स्केच दिया हुआ है प्लांट और एनिमल सेल का. मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किए हैं, एक डिटेल्ड स्केच प्रोवाइड किए हैं. आप वो भी बना सकते हैं या फिर ये भी आप बना सकते हैं. So here the parts were cytoplasm, nucleus, vacuole, cell membrane, cell wall and chloroplast. Alright. The difference between plant cells and animal cells were the plant cells has the outermost covering which is a cell wall and it is made up of cellulose, whereas the outermost covering of animal cell wall cell is the plasma membrane. तो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या किससे किया गया है? सेल वॉल से. लेकिन एनिमल सेल में क्या किससे किया गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स. So plant cell lacks centrosome and lysosomes. They have centrosomes and lysosomes. Okay. तो प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स और सेंट्रोसोम्स होते हैं. ओके. Now question number 7 is, where are chromosomes found in a cell? State their function. तो क्रोमोसोम्स कहाँ पे मिलते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं? सो क्रोमोसोम्स आर अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट कैरीज जीन. All the necessary information required for transfer of characteristics from the parents to the offspring are stored in the genes. Inheritance of characteristics is possible only because of chromosomes. तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या कैरी करते हैं? जीन कैरी करते हैं. जीन का फंक्शन क्या है कि जितने भी सारे इंफॉर्मेशंस हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रांसफ़र, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में, तो वो कहाँ पे स्टोर किया हुआ रहता है? जीन्स में स्टोर किया हुआ रहता है. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जनरेशन के से दूसरे जनरेशन के पास जाना, यानी मम्मी पापा से हम बच्चों को मिलना, यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये किस लिए पॉसिबल हो पाता है? कौन करवाता है पॉसिबल? क्रोमोसोम्स पॉसिबल करवाता है. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8 इज, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक्सप्लेन. तो हमने यही पढ़ा था इस चैप्टर में कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बताना है. तो आप क्या लिख सकते हो? Various components of plants and animals are constituted by cells. It is the smallest unit of life and it is capable of all living functions. They are the building blocks of life. That is the reason why cells are referred to as the basic structural and functional blocks of life. Cells exist in various shapes and size and performs a wide range of different activities. Their shapes and sizes are related to the function
इट परफॉर्म्स। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स प्लांट्स और एनिमल्स के किन से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे जीवन का। और सारे जो भी हम लोग जीने के लिए जो भी फंक्शंस हम लोग को रिक्वायरमेंट है वो वही सारे फंक्शंस वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वो हमारे लाइफ के एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक की सबसे पहले ज़रूरत होती है, वैसे ही एक बॉडी को बनाने के लिए, एक लिविंग फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए हमारा सेल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए सेल्स को क्या बोला जाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। और सेल्स बहुत सारे, जैसे कि हमने पढ़ा था, बहुत सारे शेप्स में मिलता है, बहुत सारे साइजेस में मिलता है, और बहुत सारे अलग अलग रेंजेस के, अलग अलग वैरायटीज़ के फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। और उनके साइज और शेप उनके फंक्शन के मुताबिक उनसे ही रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एनिमल प्लांट सेल में ही क्यों मिलता है, एनिमल सेल में क्यों नहीं मिलता। तो क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड्स रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस called photosynthesis, and thus they are only present in plant cells. Chloroplasts are the sites where photosynthesis takes place. Here carbon dioxide and water combine in the presence of energy from the sunlight to produce food. Hence chloroplasts help in synthesis of food by green plants. So carbon dioxide reacts with water, gives glucose and oxygen in the presence of chlorophyll and sunlight. तो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? एक प्लास्टिड्स होते हैं एक तरह के, जिनको फूड मेकिंग प्रोसेस यानी प्लांट के फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनमें क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। और जो प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस है। और इसीलिए वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मौजूद होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल्स फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस के लिए क्लोरोप्लास्ट को यूज़ किया जाता है, और इसीलिए वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही मिलते हैं। So students, write all the question answers in your fair copy, learn the answers and read the chapter carefully. If you all have any doubt in any part of this chapter or in any exercise questions of this chapter, you can ask me. I am going to clear your all doubts. Thank you students.